सो हेलो एवरीवन। ये हमारी सेकंड क्लास है एनाटमी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। और लास्ट क्लास में हमने बोन्स के बारे में क्या क्या डिस्कस कर लिया था, यू ऑलरेडी नो। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप वापस वो क्लास देख सकते हैं। एंड बिफोर एनीथिंग एल्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब मी ऑलरेडी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं सारे एनाटमी के पूरा कोर्स यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। नो अदर थिंग, कोई ऐप नहीं है, कोई दूसरी जगह जाके आपको बाकी के बचे हुए वीडियोज़ नहीं देखने पड़ेंगे। सारे वीडियोज़ यहीं के यहीं आपको मिलेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, बोन्स के बारे में, पेरियोस्टियम वगैरह सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया था और हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने टाइप्स ऑफ बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया था। गोइंग फर्दर हाइड, ओके। सो बिफोर गोइंग फर्दर, आई वॉन्ट टू शो यू टू मोर स्लाइड्स। ओके, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि there is something known as compact bone and cancellous bone, but I didn't show you the histological pictures of it. So let's see now, can you identify, है ना, बैठे बैठे अपने स्क्रीन पे क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं which one is cancellous, which one is compact? All right, I'll give you 5 seconds for that. So see, it's very easy to identify. If you have already done the first class, it's very easy to identify. You tell me, किस bone में, which bone contains Harvesian system? Okay, so you have to tell me which bone contains Harvesian system. uh, what was the basic structure of Harvesian system? Harvesian system will have concentric lamellae, and then inside them you can see maybe blood vessels, है ना, just at the center of it, at the middlemost point of it, there will be blood vessels, and there will also be nerves also. And then we know कि the Harvesian system connects with each other and they communicate with each other through Walksman canal, right? Everybody knows that point, है ना। ये हमारी फर्स्ट क्लास में डिस्कस हो गया था। सो हार्वेसियन सिस्टम कॉन्सेंट्रिक लेमिनेज होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग विच वन इज कॉम्पैक्ट, विच वन इज कैंसलस बोन। सो नाउ आई थिंक यू ऑलरेडी नो, लेट मी राइट इट डाउन। दिस वन, this is compact bone, and this one is your cancellous bone, right? So cancellous bones में you will see spongy kind of spaces are there, a lot of spaces is there, spaces are there, so that is spongy bone. And this one where you will see a lot of this concentric lamellae kind of picture is there, है ना, this is your compact bone. So it is very easy to identify. This was remaining from the last class, तो मैंने आपको ये यहीं पे बता दिया है. This is very important, okay? This will help you in exams. ओके चलो अब आगे बढ़ जाते हैं. वी वर टॉकिंग अबाउट पेरियोस्टेम. ओके, सो पेरियोस्टेम के बारे में एक चीज़ और हमको डिस्कस करनी है, दैट आई विल टेल यू नाउ. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग. सो गाइस, व्हाट इज दिस? ओके, आपके ऑर्थोपेडिक्स में आप ये पढ़ेंगे एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट इज़ दिस सर? व्हाट? शो अस दिस गाइस. ये आपको मालूम है, द नॉर्मल आउटलाइन ऑफ द बोन विल गो लाइक दिस, राइट? It should have been like this, but it is not so. What is happening here? You can see, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, this is coming out like this. What is this? This is known as periosteal, है ना, one of the periosteal reaction. Okay, this is seen where, sir? This is seen in osteosarcoma. All right, so this periosteal reaction is seen with in osteosarcoma. Now sir, ये है क्या, which kind? So you can already see, if you see the picture of it, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे this is looking like a triangle. So that's why they named it as Codman's triangle. Okay, Codman's triangle. So why are you teaching this? Okay, let us revise. What did I ask you? Which is the most sensitive part of the bone? Periosteum. So these periosteal reactions which will happen in osteosarcoma, will they pain or will they not be of much trouble? Of course they will pain, you know, of course they will create problem for the patient. So that's why I wanted to show you this thing. So here also in illustration picture you can see, okay, I hope you can see on the screen that this is your periosteal reaction that we just saw. Okay,
So this is the real picture, real X-ray, and then here is your illustration. अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते. सो व्हाट लिटरेचर है ना, एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम रेफरेंस लें किसी स्टैंडर्ड बुक से या स्टैंडर्ड लिटरेचर से, वी विल हैव इट हियर ओनली. ओके, सो वी विल रीड इट आउट. सो दिस पिक्चर शोज Codman's triangle. Okay, and this is due to irregular periosteal reaction that we already saw. It's okay. Commonly seen in patients with osteosarcoma. I already told you that. The periosteum is a thick fibrous membrane. I already told you that. We already discussed that outside is your fibrous layer, inside is your cambium layer. We already saw. Now you have to answer in your mind कि किस layer में progenitor cells होते हैं, एंड किस लेयर में आपके फाइब्रोब्लास्ट होते हैं. ओके, सो यू आंसर इट डाउन. अगर आपको नहीं आंसर मालूम है तो पहला आप जो वीडियो है वो जाके ज़रूर देखना. ओके, सो यस, पेरियोस्टियम इज अ थिक मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन, outer surface of all bones. It's fine. Yeah, this is the most important point. This I want you to write it down here. Where is, ओके, यहाँ पे लिख ही देते हैं, पहले पढ़ ही लेते हैं, देन वी विल सी, है ना. ये हम पॉइंट बाद में ऐड कर लेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं. सो सी, दैट कवर्स, पेरियोस्टियम covers outer surface of all bones except at the joint surfaces and insertion point of tendons and ligament. This is very important point straight from the literature, that periosteum is absent where joint surfaces, आपके articular जो surface होते हैं जो articulate करते हैं, at that point periosteum is absent. And where there are insertion points, है ना, हम पढ़ेंगे मसल के insertion points जो होते हैं. So insertion points of tendons and ligaments of the muscle, at that place also, जहाँ पे भी वो insertion points हैं bone पे of tendons and ligaments, there also periosteum is absent. So that's what they are saying कि periosteum is thick fibrous membrane that covers the outer surface of all bones except what, joint surfaces and insertion points of tendons and ligaments. At the articular margin the periosteum is continuous with the capsule of the joint. So capsule of the joint जो होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, don't worry about it. So capsule of joint से periosteum continuous हो जाता है, but वो joint surface पे absent हो जाता है. Okay, understood? So shall we write it down? This is the most important point. Okay, we'll write it down. Important point to remember. Okay, directly we'll write it down. So periosteum is, डायरेक्टली हम लिख देते हैं, covers outer surface of all bones except point number 1, joint surfaces, point number 2, insertion points of tendons and ligaments. Very important. अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया. तो ये पेरियोस्टम के बारे में एक चीज़ थी जो लास्ट क्लास में हमने पेरियोस्टम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, पर ये पॉइंट हमारा छूट गया था, तो ये हमने अभी कर लिया. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑस्टियोसार्कोमा को याद रखें, पेरियोस्टल रिएक्शन को याद रखें, कॉडमैन्स ट्रायंगल यहाँ पे हमने देख लिया, तो ये भी याद रखना. ठीक है, जो जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स कर रखी है दे नो, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, डोंट वरी अबाउट इट, बट यहाँ पे आप याद रख लें. ठीक है, कि पेरियोस्टल रिएक्शन है, पेरियोस्टम इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन, इट विल पेन. ओके, इट हैज़ अ रिच नर्व सप्लाई, और वो कहाँ पे नहीं होता है, वी ऑलरेडी रोट इट डाउन. अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया ये. अब आगे बढ़ते हैं. ओके, शार्पीज फाइबर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, व्हाट वाज शार्पीज फाइबर. ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट पेरियोस्टियम टू द अंडरलाइंग बोन, है ना. पेरियोस्टियम अंडरलाइंग बोन से कैसे कनेक्ट होता है, थ्रू दिस शार्पीज फाइबर. सो दिस यू ऑलरेडी नो. चलो अब आगे बढ़ लेते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम. तो दैट इज द एक्सेसरी बोन्स, राइट. तो देखो यहाँ पे रिवाइज कर लो, क्या क्या बोन्स होती है, टाइप्स हमने पढ़ी थी. लॉन्ग बोन्स होती है, हमने उनका एग्जांपल्स देख लिए थे. हमने शॉर्ट बोन्स देखे थे. लॉन्ग बोन्स के भी हमने बहुत सारे टाइप देखे थे. 3 टाइप्स मेनली हमने देखे थे, काइंड्स, कि एक तो टिपिकल लॉन्ग बोन होती है, एक मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है. ये हमने पढ़ रखा है. ओके, ये आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं.
अदर काइंड्स ऑफ बोन है ना, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, इनके अलावा और कौन सी बोन्स हो सकती है? तो देर इज समथिंग नोन एज एक्सेसरी बोन. ओके, दिस इज एक्सेसरी बोन. सो व्हाट इज, है ना, एक्सेसरी बोन? वी हैव टू राइट इट. सो लेट्स सी द लिटरेचर फर्स्ट. पहले हम लिटरेचर देख लेते हैं. So they say accessory bones, also known as supernumerary bones, are not always present. This is very important. They are not always present in the individual. Now they may arise due to ununited epiphyses developed from extra ossification centers. तो कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं ना, हम ऑसिफिकेशन सेंटर के बारे में आज ही पढ़ने वाले. बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं, बट देर आर सर्टेन एक्स्ट्रा ऑसिफिकेशन सेंटर्स. अगर वो अनयूनाइटेड हो जाए तो देन यू विल सी कि देर आर, यू विल सी इट एज अपरेंटली सुपरन्यूमरी बोन्स, है ना, वो यूनाइट ही नहीं हुए तो आपको दो अलग अलग बोन्स दिखने लगेंगे. सो इट्स काइंड ऑफ दैट. सो दे में अराइज ड्यू टू अनयूनाइटेड एपिफाइसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट जो आपको याद रखना है, दैट इज वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट इज दिस: clinically they may be mistaken for fractures. So this is so important, right? यूजुअली हमको कोई बोन अगर आपको मालूम है ना, नॉर्मल एनाटमी मालूम है, तो आप जानते हैं कि क्या बोन से कौन सी बोन है. अब आपको वहाँ पे अगर अनयूनाइटेड एपिफाइसिस दिख जाए, वो बोन यूनाइट ही नहीं कर पाई, तो आपको क्या लगेगा? ओ दिस इज़ अ फ्रैक्चर. बट आपको पेशेंट बोलेगा कि यार मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं. या पेशेंट आएगा किसी और प्रॉब्लम के पास के साथ, और आपको एक्सरे में दिख जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो फ्रैक्चर ढूंढ के लाया. ऐसा कुछ नहीं करने का है. सो सी, दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसरी बोन. ओके, सो shall we write it down? Okay, 2 points we have to write it down. मैं जान करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा लिखवा रहा होता हूँ ताकि आपके ब्रेन में वो है ना इनग्रेन हो जाए कि अच्छा ये तो पूरा लिटरेचर कहता है, हमको क्या याद रखना है? तो हमको ये याद रखना है कि एक्सेसरी बोन्स, ऑल्सो नोन एज सुपर न्यूमरी बोन्स. ओके, सेकेंड पॉइंट, they may be mistaken as fractures. ओके, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो एक्सेसरी बोन्स के बारे में आपको ये याद रखना है, ठीक है? एग्जाम्पल्स तो हम अभी कर ही रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? अब लेट्स सी, मेरे नोट्स में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर हों तो वो हम यहाँ पे कर लेंगे. ओके, सो लेट्स सी अदर थिंग्स. इन्होंने क्या बोला है? एग्जाम्पल्स, लिटरेचर क्या बोलते हैं वो उसको हम अच्छे से करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसरी बोन इज ऑस ट्राइगोनम. नाउ यू हैव टू इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है, व्हाट इज ऑस ट्राइगोनम. सो व्हाट वी आर डूइंग इज एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेसरी बोन. तो ऑस ट्राइगोनम, व्हाट इज दिस? इट इज अनकॉमन एक्सेसरी बोन. ऑब्वियसली दे आर अनकॉमन. सीन बिहाइंड द टेलस, ऑल्सो नोन एज lateral tubercle of the talus. This is also known as lateral tubercle of the talus. It is seen behind talus. I will show you the picture just now, है ना? Wait a minute. So one accessory bone का example क्या हो गया? Os trigonum, right? Second accessory example, accessory bone का example क्या है? Os वाइसेलियनम. ओके, सो ऑस वाइसेलियनम, और जैसे भी आपको इसको प्रोनाउंस करना है ना, हाउ सो एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट. सो ऑस ट्राइगोनम, ऑस वाइसेलियनम, these are two accessory bones that we must know about. Okay, what is that? It is uncommon, obviously located proximal. Okay, we'll see, proximal to the fifth metatarsal and found within the peroneus brevis tendon. This is very important, also known as tuberosity of the fifth metatarsal. So important, right? So this is also known as this is where located? It is located proximal to the fifth metatarsal. And now fifth metatarsal, this is first. Okay, ये first है, first is your thumb and fifth is here. Okay, so this anyways this we will do when we will be doing upper limb, everything I will tell you. Okay, so os vaisalianum, let's see the pictures. What is this, guys? What is this? Can you see? Red color. इससे पहले आपको इलस्ट्रेशन पिक्चर दिखा दूँ. ये देखो, ये भी वही बोल रहे हैं, है ना? सो इवन दो इट इज़ नॉट क्लियर, आप यहाँ पे फोकस करें कि व्हाट इज़ दिस. ये जो आपका बैठा है, दिस इज़ योर, द टर्म इज ऑस ट्राइगोनम. ठीक है, फाइन. रिफर्स टू फेलियर ऑफ द लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द
posterior process to unite with the body of the talus. So okay, ये तो हम कर ही चुके हैं कि वो unite नहीं हो पाते हैं. This we already know. So this we don't need to understand. But the location is important. कहाँ बेटा है? यहाँ पे. Okay. So this is os trigonum. Location is very important. If you have to see another illustration, this is a beautiful picture which is showing you os trigonum, है ना. तो exactly ये position आपको याद रखनी है. This is os trigonum. Sir X-ray भी बता दो. Definitely I will show you the X-ray. See, this is your os trigonum. So this is the real picture, है ना. तो ये आपको समझ में आ ही गया. Okay. Now what is this guys? है ना. Obviously that time when I was showing you, that was metacarpals I was talking about, but at the same point I was just talking about कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा फिफ्थ है ना. तो os वैसेलियम से कंफ्यूज मत हो जाना. मैं हाथ बता रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेटाटार्सल ऊपर सोचने लगो. ऑब्वियसली दिस इज मेटाकार्पल, मेटाटार्सल्स आर बिलो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा फिफ्थ है ना. ये फर्स्ट नहीं है, इसको फर्स्ट नहीं मानना है. सिमिलरली आपका ग्रेड टू भी फर्स्ट है. ठीक है. सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो अब आप देखें कि व्हाट दे वर टेलिंग यू. They were telling you proximal, this location they gave you, then they told you fifth, right, metatarsal, right. So see, proximal is where you already know by now, है ना, कि जो बॉडी के मिड लाइन के और स्पेशली आपकी बॉडी के पास है वो प्रॉक्सिमल है. जो बॉडी से दूर जा रहा है दैट इज डिस्टल. ओके. सो सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान से देखें, अगर आप हम बात करें कि कौन सी मेटाटार्सल है ये, तो लेट्स काउंट इट डाउन, है ना. यहाँ पे आप देखो, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके. सिमिलरली हियर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. व्हाट यू आर सीइंग हियर, दिस. ओके. व्हाट यू आर सीइंग हियर, इजंट इट लुक लाइक फ्रैक्चर? देखो ध्यान से, क्या हम इसको मिसडायग्नोज कर सकते हैं एज फ्रैक्चर? डेफिनेटली यू कैन मिसडायग्नोज इट एज फ्रैक्चर, बट इट इज नॉट फ्रैक्चर, इट इज अनयूनाइटेड. ओके. अनयूनाइटेड एपिफाइसिस. सो दिस इज योर os, this is your os vaisalianum. Okay. This is another accessory bone, है ना. तो proximal to the fifth metatarsal is the location of os vaisalianum, and this is your os trigonum. अंडरस्टूड. सबको समझ में आ गया. अब ये कोई नहीं भूलेगा, है ना. तो आई हैव शोन यू व्हाट लिटरेचर हैज़ टू से, एंड वी हैव सीन द पिक्चर ऑल्सो एंड इलस्ट्रेशन ऑल्सो. अगेन इफ आई हैव टू शो यू, दिस वॉज आई वॉज शोइंग यू दिस ओनली, राइट. दिस आई वॉज शोइंग यू कि ये फिफ्थ मेटाटार्सल के ऊपर जो होता है, और आपको ऐसा लग सकता है कि ये फ्रैक्चर है. दिस इज योर ऑस वाइसेलियनम. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना. एंड येस, डू नॉट, आई ब्रॉट दिस पिक्चर जस्ट टू शो यू. डोंट बी कन्फ्यूज कि सर ने तो इतना दिखाया था, अब हमको इतना बड़ा दिख रहा है वहाँ पे जो बोन का पार्ट है, तो क्या ये फ्रैक्चर है? नो, इट कैन बी ऑफ वेरियस शेप, है ना, वेरियस साइज में ये हो सकता है. दे बोथ आर ऑस वेसेलियनम. ओके. तो अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. सो दिस वॉज दिस. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है दैट इज, हमने पढ़ लिया लॉन्ग बोन वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया, एक्सेसरी बोन्स भी हमने पढ़ लिया. योर फेवरेट टॉपिक सिस्मॉइड बोन. अब सिस्मॉइड बोन के बारे में डेफिनेटली आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया ही जाता है ना. सबको मालूम है पेसिफॉर्म इज अ सिस्मॉइड बोन, सबको मालूम है पटेला इज अ सिस्मॉइड बोन. सो लेट्स सी व्हाट लिटरेचर हैज टू से एंड व्हाट आर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोई नहीं पढ़ता है पर आपको अब याद रखना है. लेट्स सी. सो यस, दिस टर्म, है ना, दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ बोन embedded within a tendon or a muscle. So this is the most important point. What basically sigmoid bone? Sigmoid bone ऐसी bone है जो tendon, it develops within the tendon of a muscle. किसी muscle के tendon के अंदर वो develop होती है. That is the bone. ठीक है. So within a tendon or a muscle. Now see, very important point. It is a variant of normal anatomy. So एक normal anatomy का ये variant है. This is not a problem or something else. This is not a condition. This is something else. This is a normal variant. कितने में present होती है? 10 to 30% ऑफ द इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट हो सकती है. कि कोई भी सिस्मॉइड बोन की अगर आप बात कर रहे हैं, है ना, बेसिकली नॉट अबाउट द पटेला. ओके. वो तो प्रेजेंट होता ही होता है, बट अदर सिस्मॉइड बोन्स, अदर एग्जांपल्स दैट विल टॉक अबाउट, दे मे बी प्रेजेंट, दे मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ सर्टेन इंडिविजुअल. सो 10 to 30%, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. What is the other example? Fabella. Now why have I given you another example as फबेला? बिकॉज दिस पीपल टेंड टू फॉरगेट, है ना. पेसिफॉर्म सबको मालूम है, पटेला सबको मालूम है, फबेला भूल जाते हो. सो फबेला इज अनदर सिस्मॉइड बोन फाउंड विद इन द टेंडन ऑफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नेमियस मसल वेयर इट मूव्स ओवर द लेटरल फेमोरल कॉन्डाइल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो अभी थर्ड आपकी लिस्ट में आ गया है फबेला. वेयर इज फबेला सर? लेट मी शो यू.
कैन यू सी? सो दिस इज़ योर फबेला. ओके, सो ये आपको दिख ही रहा है, देखो ध्यान से. अरे दिस इज़ अ वेरी नाइस पिक्चर. ओके, सो दे हैव गिवन यू दिस ऑल्सो कि सी दिस इज़ योर दिस मसल दैट यू आर सीइंग, राइट. ये मसल उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया डायसेक्ट करके. सो दिस इज़ विच मसल? नाउ यू नो ऑलरेडी. अगर आपको ऐसा कोई पिक्चर भी आ जाएगी यार, वो सिस्मोइड बोन दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको ये फ्लैप दिख रहा है, तो ये कौन सी बोन होगी? सो यू नो दिस इज गैस्ट्रोक्नीमियस का लेटरल हेड. दिस इज द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस. उसी के टेंडन के अंदर देर इज दिस बोन विच डेवलप्स. दिस इज योर फबेला. ओके, और हाउसो एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस इट, है ना. तो एनेटमी में जो आपकी मर्जी है वैसे प्रोनाउंस किया करो. मैं जैसे प्रोनाउंस करो वैसे देख लो, बाकी आपको दिख ही रही है, स्पेलिंग अपन सही कर लेंगे. ओके, ठीक है. सो दिस इज फबेला. Oh, very nice. See, they have given this picture also. See, this is also fabula only. So can you now see? And obviously, there is a difference between illustrative picture and the actual picture, है ना. तो this same fabula, how it will look at the X-ray? आप देख रहे हैं lateral X-ray, ये ऐसा दिखेगा. So this is your fabula. Okay, or fabula, howsoever you want to pronounce it. This is your fabula. This is another sesamoid bone. Develops where? Develops in the tendon of gastrocnemius muscle. Gastrocnemius muscle का कौन सा head? Lateral head. So all of these points are important. Okay, समझ में आ गया सबको? Shall we talk about other important points? See, it is given here. Important points about sesamoid bones directly from the literature. Let's study. Patella is the largest sesamoid bone in the tendon of quadriceps femoris. You have to remember कि ये कौन से tendon में develop हो रहा है, otherwise you will get confused in the exams, okay? Especially if it is your university exam. So the sesamoid bone patella develops where? In the tendon of quadriceps femoris. I think everybody knows this. So pisiform tendon of flexor carpi ulnaris, है ना. Don't worry if you don't know anything about these muscles. We will talk about it in the upper limb section, है ना. सारी मसल कहाँ से आती है, कहाँ से इंसर्ट होती है, ओरिजिन होती है, नाम कैसे हम देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, एवरीथिंग विल टॉक अबाउट. फॉर नाउ यू रिमेंबर कि हाँ, सिस्मोइड बोन डेवलप्स इन द टेंडन्स ऑफ द मसल. और नाउ वी आर डूइंग कौन से मसल्स की टेंडन्स में ये बोन्स डेवलप होती हैं. सो पटेला क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, पिसिफॉर्म, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. कार्पाई मीन्स रिस्ट, फ्लेक्शन, है ना. एंड अल्नार साइड में है. अल्नार साइड, रेडियस साइड, थंब साइड इज योर रेडियस साइड. सो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. यहाँ पे आपकी बोन डेवलप होती है, पिसिफॉर्म, यू रिमेंबर, है ना. वेरी स्मॉल बोन. Fabula, I already told you, this is the lateral head of gastrocnemius muscle. Now, there are two very uncommon, okay, but you should know these examples. So, two sesamoid bones can be found in the first metacarpal within the tendon of flexor pollicis brevis and adductor pollicis. तो ये आपके रिस्ट में आपको मिलेगा. व्हाट इज दैट? देयर कैन बी टू सिस्मोइड बोन्स, है ना. वेरी माइनर, उनका कोई स्पेशल नेम नहीं है, पर छोटी छोटी दो स्मोइड बोन्स, सिस्मोइड बोन्स आपको दिख सकती है ना. बट टेंडन इज इंपॉर्टेंट. फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एडक्टर पॉलिसिस. And two sesamoid bones can also be found in the first metatarsophalangeal articulation within the double tendon of flexor hallucis brevis. तो यहाँ पे आप याद रखें, है ना. How will you remember it? You can remember it like this. When it comes to hand, there are two sesamoid bone. Now hand and foot is basically the same. Foot बोलता है मुझे भी चाहिए. So foot says I also have two sesamoid bones. ओके. देन हैंड बोलता है कि ये तो हर चीज़ अपने मेरे से मांग लेता है, कॉपी कर लेता है. सो दे से कि हैंड बोलता है नहीं, मेरी दोनों सिस्मोइड बोन के जो टेंडन्स हैं दे आर फ्रॉम द टू मसल्स. सो कौन सी टू मसल? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एडक्टर पॉलिसिस. ओके. फुट बोलता है ओके ओके जा, मैंने बड़प्पन दिखाया. सो टू सिस्मोइड बोन बट आई विल डेवलप इट इन द सिंगल your muscle, but the single muscle, but it have double tendon. Okay, so muscle double tendon of flexor hallucis or hallucis, जैसे भी बोलना है, hallucis brevis, है ना. hallux is your big toe and pollicis when we talk about, that is your thumb. Okay, so this you have to remember, है ना. पैर का, फुट का आपका जो बड़ा अंगूठा है, ऑब्वियसली दैट इज़ योर हेलक्स एंड दिस इज़ योर पॉलिसिस. सो दैट यू ऑलरेडी नो. तो अब आपको सिस्मोइड बोन के बारे में भी एवरीथिंग यू नाउ नो, है ना. द टेंडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कैन वी नाउ अगेन रिवाइज इट? पटेला टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस. पेसिफॉर्म टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, अल्नार के साइड.
fibula, lateral head of gastrocnemius muscle. Two sesamoid bones can be there in the thumb part, two sesamoid bone can be there in the आपका फुट पार्ट, बट टुवर्ड्स द आपका ऑब्वियसली बिग टो. एंड मैंने आपको उसका जो टेंडेंस है वो भी बता दिया, विच इज़ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हैंड दैट इज़ फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एडक्टर पॉलिसिस, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फुट दैट इज़ योर फ्लेक्सर हेलुसिस ब्रेविस. सी this I am talking about. Can you see these two sesamoid bones? So this sesamoid bones is what you are seeing. This bone is again same that I talked about, that it develops on the बिग टो साइड, है ना, बिग टो के साइड की तरफ ये डेवलप हो रहा है. तो ये मैंने आपको एक्सरे भी बता दी, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. नो बडी इज आस्किंग यू दिस थिंग, बट यू एक्चुअली शुड नो वंस यू आर डूइंग. आप जब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़े हैं ना, बेसिक से पढ़े, तो ये हमने बेसिक भी कर लिया. ओके, तो सेसामोइड बोन के बारे में आपको समझ में आ गया. बाकी हमने ऑलरेडी डिसाइड पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था. अब हम आगे चलते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ एपिफाइजियल प्लेट, है ना. दिस इज अगेन, दिस इज नोन एज वॉट, दिस इज नोन एज योर growth plate, है ना. So let's talk about it. What you are seeing here is this, okay, this line that you are seeing, okay, this is your epiphyseal plate or growth plate. X is your epiphyseal or growth plate. It separates what? Epiphysis and metaphysis, okay. Metaphysis separates epiphysis and diaphysis, but this epiphyseal plate or growth plate separates your epiphysis and metaphysis. What literature has to say? Let's see. Literature says the growth plate is a hyaline cartilage layer. Very important कि ग्रोथ प्लेट कौन सा कार्टिलेज होता है. तो फर्स्ट आई राइट इट डाउन हियर, है ना. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिखो. ग्रोथ प्लेट के बारे में हमने क्या पढ़ा? हाइलिन कार्टिलेज. ओके फाइन. अगेन सर आगे बढ़ो. सो यस, it separates epiphysis from the metaphysis. I already told you it receives nourishment. Epiphyseal plate receives nourishment from what? We already did it in blood supply in the first video, right? तो दोनों आर्टरीज, एपिफाइजियल आर्टरीज भी उसको सप्लाई करती है, मेटाफाइजियल आर्टरी भी उसको सप्लाई करती है. सो इट रिसीव्स नरिशमेंट फ्रॉम बोथ एपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल आर्टरीज. yes, this is very important. This is clinical correlation, है ना. I will write it down here. The fractures of epiphyseal plate or including epiphyseal plate are known as Salter Harris fractures. ठीक है, इतना समझ में आ गया. सर बता भी दो ना. यस यस बता रहे हैं. देखो, दिस आर सॉल्टर हैरिस फ्रैक्चर. आपको कुछ अभी याद नहीं रखना है, ये आप बाद में देखेंगे, ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ेंगे, बट आप देख रहे हो ना. दे आर इन्वॉल्विंग व्हाट? दे आर इन्वॉल्विंग दिस, है ना. दे आर इन्वॉल्विंग दिस एपिफाइजियल growth plate. This is epiphyseal or growth, let me write it down, growth plate. So ये जो fractures हैं ये involve कर रहे हैं इनको, है ना. They are involving this growth plate. You can see यहाँ पे ये crush ही हो रहा है पूरा. epiphyseal growth plate is getting crushed. So these fractures which are involving growth plate are known as Salter Harris fracture, and this is very important. Again revise. एपिफाइजियल प्लेट क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज. उनके फ्रैक्चर्स को क्या बोला जाता है? सॉल्टर हैरिस फ्रैक्चर. इतना आपको समझ में आ चुका है ना. सो लेट्स सी अगेन अदर थिंग्स नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट. सो लेट्स सी. ओके, this epiphyseal plate is the site of, very important, हम पढ़ेंगे what kind of ossifications are there, है ना. बोन्स बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, कि वो कैसे डेवलप हुए, किस ऑसिफिकेशन के थ्रू डेवलप हुए हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड्स ऑफ ऑसिफिकेशन. तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे. अभी यहाँ पे आप ये देखें कि एपिफाइसियल प्लेट कैसे बनती है. तो एपिफाइसियल प्लेट इज द साइट ऑफ योर एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. ओके, एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है. नाउ दिस एपिफाइसियल प्लेट is an enchondral ossification is mainly responsible for growth of long bones.
ओके, तो ये आपका एपीफाइसिल है। प्लेट जो है वो एनकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन के थ्रू वहाँ पे एनकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हो रहा है, एंड दैट इज़ द मेन साइट ऑफ ग्रोथ, है ना, ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन हैपेंस देयर ओनली, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। नाउ कैन यू नाउ टेल मी, यहीं पे वो कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट सा, कि व्हाट आर द ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन। यहीं से ग्रोथ हो रही है बोन की, है ना, जहाँ पे भी एपीफाइसियल प्लेट है वहाँ से लॉन्ग बोन्स ग्रो कर रही है। तो आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट वीडियो कि व्हाट आर देन द ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन, है ना। सो देर आर स्पेसिफिक ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन। मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया था कि न्यूट्रिएंट आर्टरी रन्स अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को डैमेज नहीं करवाना चाहती है। ओके, सो दैट ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन विल ट्राई टू पुल द न्यूट्रिएंट आर्टरी इफ इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूट्रिएंट आर्टरी विल रप्चर, सो दैट्स वाई न्यूट्रिएंट आर्टरी रन्स अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। न्यूट्रिएंट आर्टरी के लिए हमने नेमोनिक याद किया था, टू द एल्बो आई गो, अवे फ्रॉम द नी आई फ्ली। इसका उल्टा आपका ग्रोइंग एंड हो जाएगा, सो आई विल डेफिनेटली राइट इट डाउन हियर। सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट अपर लिम्ब, ओके, अपर लिम्ब का ग्रोइंग एंड है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस बोन एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। वाई सो सर, ये ग्रोइंग एंड क्यों है? Away from the growing end, nutrient artery runs to the elbow I go, to the elbow I go, so nutrient artery is closer to the elbow. That means growing end of the bone are away from the elbow, so that means the distal end of radius and ulna, that is lower end of the radius and ulna, and proximal end of humerus, that is upper end of the humerus, they both are the growing ends of the bone. I hope you now you have now gotten the concept. Okay, so आगे बढ़ते हैं. If we talk about directly now, no need to explain, we will write it down. If we talk about lower limb, है ना, what we are talking about growing ends, please remember, not nutrient artery का direction, वो हम already कर चुके हैं. So if you talk about lower limb, uh, lower end of femur away from the knee I flee, lower end of the femur and upper end of tibia, they are the growing ends of the bone. समझ में आ गया सबको, है ना? आई होप सबको समझ में आ गया ये. सो बिफोर वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस, और वी शेल डू इट, या विल डू इट. ठीक है, सो ये आपको ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्मॉल टॉपिक, नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई मस्ट से, बट स्टिल गुड टू नो अबाउट इट. चलो अब बात करते हैं हम एपिफाइसिस के बारे में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड दिस इज़ समहाउ, ये हमारा स्टार्ट है एनाटमी का कि एपिफाइसिस क्या होता है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड नाउ. आई शो यू द पिक्चर, डोंट वरी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. देखो भाई, ये पार्ट अगर अब बोन का है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ बोन. लेट्स से दिस आर टू बोन्स, है ना. आप ये समझ सकते हैं कि ये फीमर है, ये टीबिया है, तो दे आर कनेक्टिंग लाइक दिस, राइट? ऐसे वो जॉइंट्स बनाते हैं. नाउ this tibia and this femur where they are articulating, they are obviously here they are trying to generate the pressure. भाई फीमर और टीबिया एक दूसरे के ऊपर प्रेशर तो जनरेट करेगी. पूरी बॉडी का जो वजन है वो फीमर पे है. फीमर अपना वजन जो है वो ट्रांसफर कर रही है टीबिया पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो प्रेशर एपिफाइसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पॉइंट इज प्रेशर एपिफाइसिस. लेट्स टॉक अबाउट इट. व्हाट आर दे? Articular ends of bone or surface, I should write it like this, surface of bones are pressure epiphysis because they are transferring pressure. What do you mean by, sir, they are transferring pressure? Bhai, they are transferring the weight. This is very important, है ना. Weight of the body is transferred by bone to bone, obviously joints through joints, and that part of the bone which is articulating with another bone is transmitting the pressure. That part of the bone is known as pressure epiphysis. This is very important. Obviously it is the end, है ना, तो epiphysis है. Okay, so articular ends of the bones, this we already write it down. And very important point, they assist in weight
transmission. This is very important. Okay, so they are found in region of bone, okay, that are under pressure, especially during movement. अंडरस्टूड. एग्जाम्पल, अरे यार ये तो ऑलरेडी आपको मालूम हो जाएगा. एग्जाम्पल इज नथिंग बट आपका हेड ऑफ ह्यूमरस. ऑब्वियसली हेड ऑफ ह्यूमरस, it will transfer your upper limb weight to your clavicle से आपके sternum पे जाएगा ताकि आपका appendicular skeleton को कोई फ्रैक्चर ना हो. दिस वी विल स्टडी इन ट्रांसमिशन ऑफ वेट, है ना. अपर लिम्ब में ये आएगा अच्छा टॉपिक कि भाई अब आप आउटस्ट्रेच हैंड पे अगर गिरते हैं तो आपकी जो अपर लिम्ब की बोन्स है उस पर पूरी बॉडी का वजन आता है. फिर भी यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैक्चर क्यों नहीं होता है? बिकॉज देर इज ट्रांसमिशन ऑफ वेट अकरिंग. ओके, जो आपका हाथ जब बॉडी आपके नीचे जाएगा, ज़मीन पे लगेगा, व्हेन इट विल गो डाउन then it will try to transfer all that pressure, all it weights onto the axial skeleton. That will study. So this in that transmission of weight, what part of bone will be involved? Epiphysis. What part of epiphysis will be involved? Pressure epiphysis. Okay, so this we all, that epiphysis we will call it as pressure epiphysis. So head of the humerus I already told you. Other can be condyles of femur, condyles of femur. Okay, so this is pressure epiphysis. इसका concept समझ में आ गया? See now, you can see the image also. If you see this head of the humerus bone, so so this is your head of the femur. So head of the femur में this again, if head of the humerus is pressure epiphysis, head of the femur is also pressure epiphysis. So this part where it is connecting with the acetabulum, obviously this will help in transfer of weight. This will also help in transfer of pressure. So this is your pressure epiphysis. Now what do you mean by traction epiphysis? So another epiphysis that we are trying to do is traction epiphysis. What is traction epiphysis? What do you mean by tractor? फार्मर्स यूज़ करते हैं ना ट्रैक्टर. ट्रैक्टर किसी चीज़ के लोड को खींचने के काम आता है. ठीक है, तो ट्रैक्टर पुल्स एवरीथिंग राइट. उसके पीछे जो रहता है उसको ट्रॉली को पुल करता है. दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि देखो भाई, ये बोन है, ये बोन है, ये कनेक्टेड है, ये जॉइंट है, ये प्रेशर बना रहा है. भाई दो बोन्स को आपस में क्या कनेक्ट करता है? और कोई ऑब्वियसली जॉइंट कैप्सूल कनेक्ट्स ऑब्वियसली मसल्स आर देयर ओवरलैपिंग. मसल्स कहाँ अटैच होगी? सो वेयर एवर मसल्स विल ट्राई टू अटैच. यहाँ पे तो जॉइंट है, साइड में एपिफाइसिस में मसल्स कैन ऑल्सो अटैच. वो मसल क्या प्रेशर जनरेट करेगी? नो, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. मसल डज नॉट जनरेट ऐसा प्रेशर जो जॉइंट्स जनरेट कर रहे हैं, जो ट्रांसमिशन ऑफ वेट्स हो रहा है. मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, इट विल पुल, इट विल do traction on the bone. So that part of epiphysis जहाँ पे आपकी muscles attach हो रही है, they are known as traction epiphysis also. So okay, so shall I write it down? Okay, I will write it down. So they are basically what? They are basically non articular ends. This is very important and so important है ना. मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया. देखो, traction epiphysis have no role in transmission of weight. अंडरस्टूड. इतना तो समझ में आ गया कि ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो आपका है वो ट्रांसमिशन ऑफ वेट नहीं करेगा. वहाँ पे मसल्स अटैच होती है, टेंडन्स ऑब्वियसली, उनके मसल्स के इंसर्शन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट जो होते हैं, दे आर अटैचिंग. सो वी कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, है ना. सो दे ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ये आपको पीपीटीज चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम करें, मैं आपको ये भेज दूंगा पूरी सारे जो हम पढ़ रहे हैं उन सब का नॉलेज. ओके, सो लेट्स सी. दे प्रोवाइड्स attachment to what? One or more आपका tendons of muscles. ओके, समझ में आ गया? Very important point that people tend to forget. It's not
दैट इंपॉर्टेंट कि ये नीट पीजी में पूछा जाए, मैं भी पूछ सकता है, आजकल कुछ भी पूछ सकते हैं, एफएमजी में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट रिगार्डिंग ट्रैक्शन एपिफाइसिस। ये आपके दोस्तों को नहीं पता होगा, ये आपको पता होगा। व्हाट इज दैट गाइस? यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ट्रैक्शन epiphysis ossify later than pressure epiphysis। बस ये लाइन आपको याद होनी चाहिए रिगार्डिंग ऑसिफिकेशन कि भाई कौन कब ऑसिफाई होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रैक्शन एपिफाइसिस दे ऑसिफाई लेटर देन pressure epiphysis। Pressure epiphysis ossification occurs earlier than traction epiphysis। Can I show you the examples? Very nice. We can. I already can hear the answers that you must be telling behind the screens. The lesser and greater trochanter or the lesser and greater tubercles, basically they are one and the same thing, but they belong to two different bones है ना। if you talk about trochanter, that is your femur bone। if you talk about tubercles, that is your humerus bone। the same point है ना, वो traction epiphysis का काम करते हैं। let's see, let me show you। so when we were talking about this femur है ना, this part was your pressure epiphysis, right? and this part where muscles will get attached है ना, so this will be your traction epiphysis। and ये बड़ा दिख रहा है, so this is your greater trochanter। ये छोटा सा दिख रहा है, so this is your lesser trochanter। I hope you get my point। okay, so this is this है ना। so traction epiphysis आ गया, आपका pressure epiphysis आ गया। it is very easy to understand what literature has to say, we already saw, but we can जस्ट सी वंस है ना, क्योंकि लिटरेचर को भी पढ़ना ज़रूरी है कि आपकी रिफर जो आपका जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसकी लैंग्वेज क्या है। सो प्रेशर एपिफाइसिस टेक पार्ट इन जॉइंट फॉर्मेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, एंड वेट ट्रांसमिशन, फाइन। ट्रैक्शन एपिफाइसिस नॉन आर्टिकुलर, ऑलरेडी टोल्ड यू, डज नॉट टेक पार्ट इन वेट ट्रांसमिशन, फाइन। एग्जाम्पल्स वी ऑलरेडी डिड। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टू? देखो, सबको मालूम है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन्स, सबको मालूम है। सिस्मोइड बोन, एक्सेसरी बोन, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि ये वर्ड अलग अलग है। सिमिलरली यहाँ पे एपिफाइसिस में, प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस में भी आप अभी तक बोल रहे होंगे सर क्या बोर कर रहे हो। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी है। मे भी आपको आता है कि आपके दोस्त को, कलीग को नहीं आता है ना। 1.5x पे देखा करो, ऐसे समय में भी ऐसे ही करता था। ठीक है, जो नहीं आता है उसको ढंग से पढ़ो, जो आता है उसके थ्रू गो थ्रू चले जाओ, है ना, फास्टली। बट दीज आर टू एपिफाइसिस के नाम जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वन इज एटाविस्टिक एपिफाइसिस, वन इज एबरेंट एपिफाइसिस। ओके, so let's talk about atavistic epiphysis। what is atavistic epiphysis? basically, see guys, basically they are independent bone, है ना, इंडिपेंडेंट बोन होती है वो। नाउ अंडरस्टैंड, किस में इंडिपेंडेंट होती है वो? दे आर इंडिपेंडेंट बोन इन लोअर एनिमल्स, बट they fuse and humans। fuse to what? fuse to obviously another bone in humans। तो एनिमल्स में ये अलग से बोन होती है, पर ह्यूमंस में ये फ्यूज हो जाती है। द क्लासिक एग्जाम्पल जो आपसे पूछा जाता था आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, द क्लासिक एग्जाम्पल इज व्हाट? कोरोकोइड प्रोसेस। it is fused to scapula in humans। okay, it is fused to scapula in humans। so coracoid process is very important। so that's why जब आप ये स्पॉट टेस्ट में जाते हैं, जब आपका स्पॉट एग्जाम होता है, वहाँ पे वो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट जो बोनी प्रोमिनेंसेज है ना, जो बोनी लैंडमार्क है, उसको वो पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एक्रोमियन प्रोसेस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट वेल गिविंग इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग, यू हैव टू दिस इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन इन माई स्पॉट टेस्ट दे आस्क मी एक्रोमियन प्रोसेस एंड अदर थिंग्स, है ना। उस समय एनेट की नॉलेज इतनी भी नहीं थी मेरी कि मैं एक्रोमियन प्रोसेस ढंग से बता दूँ, इसलिए फिर मुझे गुस्सा है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड देन अनदर
important your bony landmark is your coracoid process. So you have to understand coracoid process is a atavistic epiphysis का example. Understood है ना. independent bone होती है lower animals में, हम में fuse हो जाती है. So if this is atavistic epiphysis, what do you mean by aberrant epiphysis? aberrant का मतलब होता है कि गलत जगह पे है वो. फॉर एग्जांपल अगर घर पे आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं और मम्मी बहुत मतलब आपको मालूम है हर घर में मम्मी जो है वो सामान सब सही ढंग से सब सजा के रखती है, राइट, वही जमाती हैं. अगर उनको कोई इधर की उधर चीज़ दिख जाए तो वो उनको इमीडिएटली पॉइंट आउट हो जाती है, राइट. इमीडिएटली उनको वो दिख जाती है और इमीडिएटली आपको डांट भी पड़ जाती है, यहाँ क्यों है, मैंने ये कल ही संभाला था, सो वट एवर. ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ. सो एब्रेंट इज लाइक दिस कि नॉर्मली दूसरे उसके जो काउंटर पार्ट्स हैं, दूसरे काउंटर जो बोन्स हैं उसमें वो कोई अलग जगह पे है और यहाँ पे हमको कुछ अलग देखने को मिल रहा है. इस केस में हमको कुछ अलग देखने को मिल रहा है. दिस इज नोन एज एब्रेंट. ओके, सो दिस इज एब्रेंट. सो जस्ट गिविंग यू द कॉन्सेप्ट ताकि आपको ये याद रहे एग्जाम के टाइम पे. सो लेट्स राइट इट डाउन ऑल्सो. Aberrant epiphysis, what it basically is deviation from, okay, deviation from the normal, है ना. Can we write it down? Normal in it, and they, very important guys, are not always present. So this is very important. Aberrant epiphysis, they may not be present, and they are derived from or deviation. They are kind of deviation from the normal. So what is the classic example of it? Let us write it down. Classic example is epiphysis at the head of first मेटाकार्पल. ओके, सो एपिफैसिस जो है आपके फर्स्ट मेटाकार्पल पे, दैट इज टुवर्ड्स द हेड. बट आपके जो बाकी के मेटाकार्पल्स हैं, योर सेकेंड टू फिफ्थ मेटाकार्पल, दैट ऑन दैट इट इज़ ऑन द बेस, है ना. तो दिस इज एब्रेंट, राइट, कि सब पे तो बेस पे है और आपके हेड पे कैसे है. सो दिस इज एब्रेंट एपिफैसिस. ओके, सो लेट मी शो यू द पिक्चर. ओके, लेट्स सी, है ना. डोंट लुक एट दिस एरो. ये सूडो एपिफैसिस बता रहे थे, ठीक है. सूडो एपिफैसिस भी करके कुछ होता है कि आपको कभी कभार कुछ बोन्स में, है ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू नाउ, पर इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आपको कभी कुछ बोन्स में ऐसा दिख जाएगा कि नहीं यार नीचे भी एक और एपिफैसिस देखने को मिल रहा है. सो समटाइम्स दे राइट इट डाउन एज सूडो एपिफैसिस, ठीक है. बट अगर आप नॉर्मल एनाटॉमी देखें इसको, अगर आप ध्यान न दें, इवन दो मैं ये पिक्चर लाया इसलिए था कि आपको सूडो एपिफैसिस का भी कॉन्सेप्ट मालूम हो, ठीक है. इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दिस पिक्चर यू कैन गो ऑन टू गूगल एंड सर्च अनदर पिक्चर्स ऑफ सूडो एपिफैसिस ऑल्सो, है ना. बट सी, नॉर्मल एनेट में आप देख रहे हैं कि दिस इज़ योर, ओके, दिस इज़ योर थंब साइड, है ना. कैसे आइडेंटिफाई करना है सर, कौन सा क्या है, ये हम अपर लिम में देखेंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, जस्ट गो विद मी. सो दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ योर सेकेंड, दिस इज़ योर थर्ड. आपको दिख भी रहा है शॉर्ट है तो ये आपका थंब, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है. बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंड दिस इज़ वेरी योर लिटिल फिंगर, है ना. नाउ सी 1 2 3, दिस एपिफैसिस है ना, आपको अलग से दिख रही है ना. आपको ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में दिस इज़ द प्लेस वेयर देयर मस्ट बी ग्रोथ प्लेट ऑल्सो. सो ये आपको जो एपिफैसिस दिख रही है ये बेस की तरफ है, बट आप यहाँ पे देखें दिस इज़ द फर्स्ट मेटाकार्पल, एंड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टुवर्ड्स द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल देयर इज एपिफैसिस. सो दिस बिकम्स योर okay, this becomes your aberrant epiphysis. अंडरस्टूड, ये आपका एबरेंट एपिफैसिस बन जाएगा. क्या आपको समझ में आ गया. तो हमने क्या पढ़ा गाइस, है ना. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये आपका एबरेंट एपिफैसिस है. फॉर द फर्स्ट हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल योर एबरेंट एपिफैसिस इज देयर, है ना. समटाइम्स सी, दैट्स वाई आई ब्रॉट दिस पिक्चर. समटाइम्स दैट ऑस ट्राइगोनम, जो वो एक्सेसरी बोन्स है ना, ये एनेट में बहुत होता है गाइस. जब हम पढ़ेंगे ना तो हम आपको बताएंगे कि कई सारी चीज़ों में देर वी कैन कॉल इट एज कॉन्ट्रोवर्सी ऑल्सो. ये कुछ चीज़ें जो है, आप इसको ऐसे मान लें कि अलग अलग जो ऑथर्स हैं वो कुछ अलग अलग बातों से एग्री करते हैं. तो समटाइम्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि ओके ये ऑथर ये बोल रहा है, ये ऑथर ये कह रहा है. देखो कई सारे लिटरेचर ऑस ट्राइगोनम को दे कॉल इट एज एटाविस्टिक एपिफैसिस, while what we studied ostrigonum as your
दैट एक्सेसरी बोन, इट्स ओके, यू शुड नो बोथ द थिंग्स कि हाँ ठीक है। यूजुअली हर जगह जो मेन आपका कंसेंसस है वो बोल रहा है कि ऑस्ट्रेगोनम इज योर एक्सेसरी बोन, कहीं पे ये ऐसा दिखा दे तो यू शुड नॉट वरी मच, ओके। सो बट अदर देन दैट एटाविस्टिक एपिफाइसिस कोरिकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ओके। सो दिस इज योर कोरिकोइड प्रोसेस दिस ऑफ स्कैपुला, जो फ्यूज हो जाता है आपके स्कैपुला में, एंड दिस इज योर एटाविस्टिक एपिफाइसिस। सो नाउ यू नो कि कोरिकोइड प्रोसेस के अलावा एक एग्जाम्पल जो किसी को नहीं मालूम होगा, जो कहीं कुछ लिटरेचर्स में दिया होता है, कुछ लिटरेचर्स में कुछ और दिया होता है, बट यू नाउ नो कि हाँ ठीक है यार, वो ऑस्ट्रेगोनम वाली चीज़ जो है उसका जो पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ द टेलस है उसको हम एटाविस्टिक एपिफाइसिस मान सकते हैं, ओके, इट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाट यू नो बाय एपिफाइसिस। सो वी ऑलरेडी सॉ प्रेशर, ट्रैक्शन, एटाविस्टिक, एबरेंट। अब हमको देखो, वी नाउ नो एवरीथिंग अबाउट बोन, है ना, कि हमको क्या बोन में क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, हिस्टोलॉजिकल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसके क्या टाइप होते हैं, उसमें भी डायफाइसिस में क्या होता है, एपिफाइसिस में क्या होता है, ग्रोथ प्लेट क्या होती है, ग्रोथ प्लेट से रिलेटेड क्लिनिकल कोरिलेशन क्या होता है। दिस इज एपिफाइसिस। एपिफाइसिस किस किस टाइप के होते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, दिस इज योर based on development of the bone. Bones can be classified into various categories. So let's just go through it, है ना, ये एक बार हम पढ़ लेते हैं। दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, पर एक बार पढ़ने में कुछ नहीं जाता है। सो लेट मी ब्रिंग इन माई नोट कि इसमें क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, ओके, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो दे बेसिकली आज द एग्जाम्पल, है ना, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स गोस डेवलप्स थ्रू कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, और एनकॉन्ड्रल कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन ही एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन होता है जो एपिफाइजल प्लेट में होता है, वी ऑलरेडी नो, है ना। सो बेसिकली दे आज दिस क्वेश्चन इन योर नीट पीजी एग्जाम, कि नॉट द रिसेंट एग्जाम्स, कि this bone or which of the following are the example that develops through this kind of ossification, that develops through that kind of ossification. So examples are important, okay. So based on the development of bones, they are divided into this following categories. देखो आप ध्यान से, membranous bones ध्यान से पढ़ो, लिटरेचर क्या बोलता है। membranous bones are formed through intramembrane classification, उसने गलत टाइपो कर दिया है, सो ossification, ओके। सो मेम्ब्रेन के थ्रू वो ऑसिफाइड होते, पहले वो मेम्ब्रेन होती है, देन दे ऑसिफाइड। दिस इज देर इज डायरेक्ट बोन फॉर्मेशन विद इन हाईली वास्कुलर शीट्स और membranes derived from mesenchymal condition. So those membranes, they have highly vascularized sheets, from that they ossify and then they become membranous. This is known as membranous ossification, okay. Examples are important, है ना, nothing else you need to know, examples are important. The bones of facial skeleton, including the frontal bone, zygomatic bone, lacrimal bone and your nasal bones. So basically आप बस इतना याद रख सकते हैं कि this area, है ना, this area develops through membranous ossification, बस इतना याद रख लिया, बात खत्म। दिस एरिया डेवलप्स थ्रू membranous ossification, याद हो गया, है ना। तो अब आपको अगर फ्रंटल बोन, ज़ैगोमेटिक बोन, लेक्राइमल बोन, नेजल बोन ये ऑप्शन में आ जाए और वो पूछे कि membranous ossification से कौन डेवलप होता है, you will have the answer, okay, understood। आगे बढ़ते हैं। So कार्टिलेजिनस बोन्स ऑब्वियसली आर फॉर्म फ्रॉम इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, कार्टिलेज होते हैं वो और फिर वो ऑसिफाई हो जाते हैं ना। कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज क्या होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट दे आर इलास्टिक इन नेचर, दे आर मोबाइल, राइट, अलग अलग होते हैं कार्टिलेज, हाईली इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, बट दे आर यूजुअली लिटिल मोबाइल एंड दे डू नॉट हैव blood supply, they do not have nerve supply, they do not have lymphatics, so that's why they do not they are insensitive to pain, okay. So fine, bone forms by ossification of preformed hyaline cartilage model. So यहाँ पे hyaline cartilage is important. This is the main method of bone formation in the body, so this becomes very important, that cartilaginous ossification is the, okay, is the main method of ossification. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि अगर आपसे पूछे कि भाई इतने सारे ऑसिफिकेशन आपने बता दिए पर मेन कौन सा है जिससे मैक्सिमम बोन्स डेवलप होती है, दैट इज कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। पहले वो कार्टिलेज होते हैं, देन दे ऑसिफाई, ओके। सो एग्जांपल्स आर बोन्स ऑफ द लिम्स, वर्टिब्रल कॉलम, thoracic cage. सो बेसिकली दे विल नॉट आस्क यू दिस, दे विल आस्क यू अदर थिंग्स, क्योंकि ये तो मेन मेथड है तो इसमें तो बहुत सारी बोन्स आ जाएगी, तो वो दूसरे दूसरे एग्जाम्पल्स है ना, एक्सेप्शन बिकम्स क्वेश्चन, ओके। देन थर्ड पॉइंट इज योर
Third is your membranocartilaginous, which is mix of both. Bones ossify from both cartilage and mesenchymal condensation. This is very important. The mix है ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि clavicle is the king of all this exception and all this uniqueness. Again, see one uniqueness comes here also. ऐसे आप याद कर सकते हैं. So membranocartilaginous ossification का एग्जाम्पल मैं वापस लिखना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर क्लेविकल, जो सबसे अलग चलता है हियर ऑल्सो. देन योर मैंडिबल. भाई इसको याद रखो अच्छे से. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है फेशियल इज मेम्ब्रेनस, बट वहाँ पे मैंडिबल नहीं आया है. सो मैंडिबल, जब भी आप बोलो फेशियल इज मेम्ब्रेनस except mandible, mandible is your membranocartilaginous. Okay, so this you have to remember. Then your occipital, you know, occipital bone, and your skull bone, basically temporal bone. Okay, and your sphenoid bone, etc. So this is how you have to remember, है ना. So three kinds of ossification we already did. ठीक है, ossification we already did. What membranous, cartilaginous, membranocartilaginous. Membranous, facial, except mandible, because mandible is membranocartilaginous. Cartilaginous, main method of ossification. All majority of the bones develop through cartilaginous. Cartilage becomes, and which cartilage is involved here? Hyaline cartilage. This is very important. In the next chapter we will study about cartilage, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रोकार्टिलेज कैसे डिफ्रेंशिएट करना है. 3D मॉडल में देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ उनके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ पे हैं, वो 3D मॉडल में हम देखेंगे. बट यू हैव टू रिमेंबर कि दैट हाइलिन कार्टिलेज इज इन्वॉल्व इन एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. ओके, सो ओके लेट्स कनेक्ट इट. हमने ये बोला कि एपिफाइसियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट जो है दैट इज़ योर दैट इज़ द साइट ऑफ एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एपिफाइसियल प्लेट है दैट इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज? यस, वी कैन से लाइक दिस. सो जब हम हाइलिन कार्टिलेज का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ लेंगे कि दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर वन ऑफ द एग्जाम्पल इज योर एपिफाइसियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट, बिकॉज दैट इज द साइट ऑफ एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन विच एक्चुअली इन्वॉल्व्स हाइलिन कार्टिलेज. Okay, so this is how you can connect, है ना. everything in anatomy can be connected. Okay, if you do it through the basic, है ना, बेसिक से करेंगे तो. अंडरस्टूड, ये आपको समझ में आ गया. नाउ सिंस इंट्राकार्टिलेजिनस जो ऑसिफिकेशन है गाइस, है ना, व्हाट दे हैव टू से दिस द लिटरेचर कि दिस टाइप ऑफ बोन फॉर्मेशन ये फाइन. Intramembranous ossification, commonly known as contact healing or Harvesian remodeling, that is not that important. Okay, I don't know this side, ये यहाँ पे मैंने रखा भी क्यों, but this is very important. What is this guys? Since I already told you कि जो आपका इंट्राकार्टिलेजिनस है और दूसरा नाम है एनकॉन्ड्रल बोन, दैट इज़ द मेन, है ना, दैट इज़ द मेन मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन. इसके बारे में सिर्फ एक बार जस्ट गो थ्रू दिस नॉलेज, है ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कि व्हाट आर द इवेंट्स, क्या इवेंट्स होते हैं जब ये इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन हो रहा होता है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मॉडल, पहले फॉर्मेशन होता है ना, इन दिस रीजन वेयर बोन इज टू ग्रो विद इन द एम्ब्रियो. हाइलिन कार्टिलेज इज डेवलप्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइलिन कार्टिलेज मॉडल इज डेवलप्ड. ओके, तो सबसे पहले कार्टिलेज आता है, तो हाइलिन कार्टिलेज आता है. दैट कार्टिलेज मॉडल इज सराउंडेड बाय वास्कुलर कंडेंस मेसेनकाइम और पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम इज द कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज. हम पढ़ेंगे जैसे बोन में पेरीओस्टियम होता है वैसे कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम होता है. इवन अगर आपको मेरे फर्स्ट वीडियो से याद है कि पेरीओस्टियम में हमने कौन कौन सी लेयर्स देखी थी, तो हमने पढ़ा था आउटर फाइब्रस लेयर होती है, इनर सेलुलर विच इज कैम्बियम लेयर होती है. सेम पेरिकॉन्ड्रियम में भी होता है, आउटर फाइब्रस होती है, इनर सेलुलर होती है. तो दैट विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट चैप्टर. देन after the formation of cartilage model, you will have appearance of primary center of ossification. This is very important. This I will talk about just now, है ना. This is very easy topic. What is that? Center of ossification. यहीं पे करें. चलो यहाँ पे आते हैं वापस. Let's do center of ossification. There are two centers of ossification. One is primary center of ossification, वहाँ पे पहले ossification होना शुरू होता है, and then there is secondary center of ossification. So what is the difference between both? Let's see. Okay, just a second. Yes, so primary center of ossification, the most important point is they develops, or rather I should write, they appear before birth.
वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बर्थ के पहले ही आ जाता है ना, इन यूट्रो, दैट इज प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन. ओके, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन यूजुअली डेवलप ड्यूरिंग, यूजुअली, ओके, ड्यूरिंग लेट एम्ब्रियोनिक और अर्ली फीटल लाइफ. ओके, बेसिकली आपका 7th वीक टू 4th मंथ जो होता है वो ये टाइम होता है, 7th वीक टू 4th मंथ. ओके, दिस इज व्हाट, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट डू दे फॉर्म. प्राइमरी ओसिफिकेशन फॉर्म्स डायाफाइसिस. ओके, नाउ यू नो कहाँ से डायाफाइसिस आ रहा है. द प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर ओसिफाई टू फॉर्म डायाफाइसिस. सो सर एपिफाइसिस कहाँ से आता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से. ऑब्वियसली दे डेवलप्स और दे अपीयर after, usually after birth. Okay, and they form what, guys? They forms epiphysis. कितना ईजी है समझना कि आपका जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है ये बर्थ के पहले आ जाता है, डायफाइसिस बनाता है. सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बर्थ के बाद अपीयर होते हैं, ये आपका एपिफाइसिस बनाते हैं. और ये हम पढ़ेंगे भी बर्थ के बाद, कब कब वो जब जब आएगा तब तब हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन इज वेरी easy. They say, okay, that the ossification, okay, they say that the ossification center that appears first is the last to fuse. दैट मीन्स जो पहले आएगा वो बड़प्पन दिखाएगा, वो जल्दी जल्दीबाजी में नहीं रहेगा. वो पहले आएगा, वो बड़ा है, वो बोलेगा बाकी सबको कि चलो आप पहले फ्यूज़ हो जाओ फिर मैं फ्यूज़ होऊंगा. तो इफ़ आई कम्स फर्स्ट आई विल शो माई ग्रैंडियोसिटी, है ना, जनरोसिटी आई विल शो, एंड देन आई विल अलाउ अदर टू फ्यूज़ एंड देन आई विल फ्यूज़. सो फर्स्ट टू कम लास्ट टू फ्यूज़ इज द नॉर्मल लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. द क्वेश्चन कम्स इज कि कौन वायलेट करता है, विच बोन वायलेट्स इट. So you have to understand, very important, the fibula bone violates, okay, very important, this law of ossification. This law, what does that mean? The secondary center at the lower end of fibula, okay, appears before the upper end, but fuses also before the upper end. अंडरस्टूड. तो वो बोल रहे हैं कि जो फिबुला बोन है उसका जो ऑसिफिकेशन है, जो लोअर एंड का है, जो सेकेंडरी सेंटर है, वो जल्दी तो आ जाता है पर वो जनरोसिटी शो नहीं करता है. वो ये नहीं बोलता है कि मैं अपने से छोटों को पहले फ्यूज़ होने देता हूँ. वो बोलता है नहीं तुम हटो, मैं पहले आया हूँ, मैं पहले फ्यूज़ होऊंगा. दिस इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. दिस इज वायलेटिंग द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. विच बोन, फिबुला बोन. सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो फिबुला बोन जो है आपका दैट वायलेट्स द लॉ ऑफ ऑसिफिकेशन. सो अब आपको समझ में आ गया ऑसिफिकेशन सेंटर. प्राइमरी ऑसिफिकेशन डेवलप्स बिफोर बर्थ, सेकेंडरी आफ्टर बर्थ, प्राइमरी डायफाइसिस, सेकेंडरी एपिफाइसिस. दिस इज व्हाट इट इज. सो दैट्स व्हाई, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट पहले आपका जो है, देखो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यस, जो आपका मेजर जो आपका ऑसिफिकेशन है वो है एनकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन. उसमें पहले कार्टिलेज आता है. कौन सा कार्टिलेज आता है गाइज? अगेन ऑफ कोर्स हाइलिन कार्टिलेज आता है. देन व्हाट दे से कि अपीयरेंस ऑफ प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, सबसे पहले प्राइमरी आएगा, है ना. द कॉन्ड्रोसाइट्स इन द सेंटर ऑफ कार्टिलेज, दे मॉडल हाइपरट्रॉफी होता है, अक्यूमुलेट ग्लाइकोजन इन देयर साइटोप्लाज्म, बिकम वैक्यूलेटेड, फाइन.
just go through it once, nobody is asking you. After cartilage model, primary center, then comes your primary areolae formation, hypertrophy होती है chondrocytes की, okay, results in enlargement in the lacunae, reduction of the intervening cartilage matrix जो है वो reduce होने लगता है. क्यों? क्योंकि it has to calcify, right? It has to calcify, so that's why which becomes calcified. Then chondrocytes die and their lacunae are now called as primary areolae. Nobody is asking you, just go through it. Then finally there is formation of subperiosteal bone collar. So osteogenic cells in the deeper layer of perichondrium, है ना. Progenitor cells were there in the deeper layer of periosteum. I told you they form what? Osteoblasts. Similarly, जो osteogenic cells हैं वो हम पढ़ेंगे next chapter में. They are present in the deeper layer of perichondrium, differentiate into osteoblasts. Same thing, right? And perichondrium is transformed into periosteum. See how unique anatomy is. आई हैव बिन टेलिंग यू फ्रॉम दिस होल लेक्चर कि देखो जैसे हमने पेरियोस्टियम पढ़ा था वैसे ही पेरिकॉन्ड्रियम है, जैसे पेरियोस्टियम पढ़ा था वैसे ही पेरिकॉन्ड्रियम है. पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की कवर होती है, पेरियोस्टियम बोन की कवर होती है. पर पेरियोस्टियम में भी बाहर की लेयर जो होती है वो फाइब्रस होती है, इनर सेलुलर होती है. पेरिकॉन्ड्रियम में भी बाहर की लेयर जो होती है वो फाइब्रस होती है, इनर सेलुलर होती है. क्यों सर, क्यों ये दोनों आप सेम सेम बोल रहे हो? देखो, पेरिकॉन्ड्रियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेरियोस्टियम. जो आपका पेरियोस्टियम है वो कहीं और से नहीं आता है, वो पेरिकॉन्ड्रियम से आता है. सो दैट्स वाई बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है, ख़त्म करें आज का ये लेक्चर, है ना. सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाता हूँ. दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग एनाटमी. एंड ट्रस्ट में जिन्होंने भी मेरे से क्लासेस पढ़ी है, मैंने पहले बहुत सारी बैचेस पढ़ाई है, अराउंड 10-11 बैचेस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. और सारे स्टूडेंट्स एनाटमी में सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. दे ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द वीडियोज़ ऑफ द सीरीज़. ओके, सो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना. मैंने कुछ नहीं छोड़ा है. जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूनिवर्सिटी वाइज, एग्जाम वाइज, FMG वाइज, नीट PG वाइज, सब मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ. ओके, एंड व्हेन यू विल गो टू द कोर एनाटमी जहाँ पे हम रीजन वाइज जाएंगे तब आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको बेसिक्स आता है. ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. और अगर ये PPT या कुछ चाहिए, मुझसे कुछ बात भी करनी हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.